Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav Majumdar and you're watching Cat Make Engineer. Sky by the ocean blue. Welcome everyone to my another teaching video for using AutoCAD software. In this video you will learn about the drawing tools in detail, and also with that you will get to learn about the limits and the drafting settings. So let's get started. तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ड्राइंग टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। उसका जो ओवर रिव्यू था वो हमने देख चुके थे कि क्या क्या ड्राइंग टूल्स में है। तो आज उसको इन डेप्थ में हम लोग सीखेंगे और इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि लिमिट को कैसे हम लोग यूज़ करें, किस पर्पस से यूज़ करें और ड्राफ्टिंग सेटिंग्स है क्या, उसको सेट कैसे करें। ऑलराइट, तो चलते हैं हम लोग अपने वर्क स्पेस में ऑटोकैड में। तो अभी आ चुके हैं अपने वर्क स्पेस में। तो फर्स्ट जो है हम लिमिट सेट करेंगे। तो लिमिट सेट क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पर लिमिट को कैसे सेट करें ये पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू टाइप LIM which is the shortcut key of limit and you have to press enter. So it wants it says that specify lower left corner. Okay, so the lower left corner is the lower limit and the upper right corner is the upper limit. You have to set the limit in between which you will draw your designs or any drafting objects. Okay, so to set that you have to put coordinate, or you can by manually you can put it in any point. So let me put the coordinates according to mine. I will put 0,0 as I will put the lower left corner as the workspace origin. So the lower left corner will be 0,0, the workspace origin point, and the upper right corner will be my 100,75. Okay, so the limit is been set, but you can't view the limit. So if you want to view the limit you can use rectangle as a border. So I will put it in the origin point because the limit starts from the origin and it will set up to 100,75. Alright, तो इसको जूम कर लिए हम लोग अभी, और जूम के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे जूम किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर पाते हैं। बहुत टाइप का यह ऑप्शन है, बट फिलहाल अभी जो हम लोग सीख रहे हैं लिमिट के बारे में वो भी देख लेते हैं। तो लिमिट हैज़ बीन सेट एंड नाउ you have to activate it because by default the limit is being turned off. So to turn it on you have to press limit, the shortcut key, and then press enter. Okay, so in the command prompt window you can see there are two options, on and off. So choose the on because by default it is switched as off. So the limit is been activated, and the purpose you will see that if you want to draw inside the limit you can draw. Suppose I want to draw with some lines and I can draw, as you can see. But if I want to draw outside the limit it will not snap anything. You can't place anything outside the limit. Okay, because the limit is been set. It's the main purpose is that if you want to draw in a certain area, in a fixed area or a limited area, then the limit is used. Because sometimes you draw at a large scale that your drawing is being very much big in size. Okay, so that's why the limit is been set, so that the size of your design will be in a proper or desired scale. Alright, so that's why the limit has been set. Okay, तो
ऐसे करके हम लोग लिमिट को सेट कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट हो गया, जान गया कि लिमिट कैसे यूज़ होता है। अभी लिमिट ऑन ही रख देते हैं क्योंकि हम लोग अभी इस लिमिट के अंदर ही जो जो सीखना है सीखेंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? इट इज़ यूज्ड टू सेट सम सेटिंग्स फॉर द ड्राफ्टिंग। तो आपके पास कोई डिज़ाइन है और आपको चाहिए कुछ ये ऐसा कैटेगरी बोल रहे, मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया जिससे आप ड्राफ्टिंग को स्मूथली कर पाए। ओके, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत रहता है जिससे कि आप जो डिज़ाइन करेंगे वो ठीक तरीके से एंड स्मूथली कर पाए। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए जो इसका शॉर्टकट की है दैट इज़ DS एंड यू हैव टू प्रेस एंटर। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का जो पहला ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स का, तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका स्नैप एंड ग्रिड। तो स्नैप एंड ग्रिड में क्या है? स्नैप एंड ग्रिड तो हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि ये जो लाइंस रोज एंड कॉलम्स में जो लाइंस है उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज स्नैप? स्नैप क्या है? स्नैप एक्चुअली है क्या? सपोज अभी जैसे स्नैप ऑन नहीं है तो मैं कहीं पर भी इसको बिठा सकता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर भी बिठा सकता हूँ लाइन को, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ इसको ऐसे करके। बट अगर स्नैप ऑन रहेगा तो ग्रिड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ही स्नैप करेगा आपका। देख लीजिए एक बार। तो स्नैप ऑन करने के लिए जो टॉगलिंग की है वो है आपका F9, ठीक है। आप F9 से इसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस की इज़ नोन एज टॉगल की। ये शॉर्टकट की नहीं है, टॉगल की है। ओके, तो आप यहाँ पर स्पेसिंग भी दे सकते हैं। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 5 यूनिट्स का दे देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इक्वली था पहले यहाँ पर, इसलिए दोनों एक स्पेसिंग में जो 5 था यहाँ पर वाई स्पेसिंग में भी 5 आ चुका है। अगर एक्स में 1 रहेगा तो इसमें 1 रहेगा। बट इन केस अगर आपका जो ये इक्वल स्पेसिंग है ये अनचेक रहता है, तब अगर यहाँ पर आप 1 डालेंगे तो ये 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पर कोई अनचेंज मतलब चेंजेस नहीं आएगा। इट विल बी अनचेंज, रिमेन अनचेंज। तो आपको तब यहाँ पर अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं चाहिए आप वैरिंग ग्रिड रख सकते हैं, मतलब वैरिंग स्नैपिंग के लिए वाई में कोऑर्डिनेट तक स्नैप करेगा, एक कुछ यूनिट तक, एक्स तक कुछ यूनिट स्नैप करेगा। तो इसलिए ये इक्वल स्पेसिंग आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, बट ज़्यादातर ऑन ही रखिए। तो ये हो गया हम लोग का स्नैप ऑन। तो अभी देखते हैं स्नैप का क्या है। तो मैं फिर से लाइन ले लेता हूँ। अभी देखिए हर एक कोऑर्डिनेट मतलब ग्रिड का इंटरसेक्ट में मेरा जो कर्सर है वो स्नैप हो रहा है। अब देख सकते हैं थोड़ा रुक रुक के ये चल रहा है। मैं जो इसको ड्रैग कर रहा हूँ कर्सर को, ये थोड़ा रुक रुक के मूव हो रहा है। मतलब क्या, ये हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट को स्नैप कर रहा है बिकॉज द स्नैप मोड इज़ ऑन। और अगर मैं स्नैप मोड को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्नैप मोड को ऑफ कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ वहाँ रुक रुक के नहीं जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं स्नैप मोड को ऑन करता हूँ फिर से तो ये रुक रुक के चलेगा। मतलब रुक रुक के जा रहा है, मतलब ये हर एक पॉइंट को स्नैप कर रहा है, इसलिए वो कुछ देर जाके वहाँ पर रुक रहा है। फिर से जब उसका नियरेस्ट पॉइंट आ रहा है आफ्टर ड्रैगिंग, वो उस पॉइंट पे स्नैप हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग स्नैप को यूज़ कर सकते हैं। और स्नैप को अभी फ़िलहाल ऑफ कर रखते हैं। और यहाँ पर जो ग्रिड है जिसका टॉगल की है F7,
ग्रिड आप ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, उसमें भी इक्वल स्पेसिंग रख सकते हैं, नी भी रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन और द ड्राफ्टिंग यू विल सेट योर ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, ओके। तो अभी चलते हैं पोलर ट्रैकिंग में। पोलर ट्रैकिंग आखिर है क्या? पोलर ट्रैकिंग में सपोज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार कि सपोज ऐसा एक लाइन है, ओके। मुझे एक 45 डिग्री में और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। या तो आप यहाँ पर एंगल डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस करके आप का जो ये अंदर का एंगल है 45 डिग्री में आप ला सकते हैं। तो ये सब ना करके आप सिंपली ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आपका जो एंगल है वो पहले से डिटरमाइन करके, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल पे रख नहीं देगा, ओके। आपको वहाँ पर एक ट्रैकिंग देगा कि इतना तक 45 डिग्री है, इतना तक 60 डिग्री है, इतना तक 30 डिग्री है, इतना तक 90 डिग्री है, ओके। तो ये आपको ट्रैकिंग देता जाएगा, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। मतलब उस ट्रैकिंग पे आप क्लिक कीजिए तो उस ट्रैक पे आपका जो लाइन है वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट एंगल है, इंक्रीमेंट एंगल मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज़ यहाँ से इतना तक, मैं थोड़ा एंगल देके बता रहा हूँ अभी, इसको ओवरराइट करते हैं पहले, ओके। तो ये जो एंगल अभी मैं बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये 45 डिग्री है। अभी इंक्रीमेंट का मतलब है जो ये लाइन है, ठीक है, अभी इस लाइन से ये वाला होगा अभी बेस लाइन, और इस लाइन से अभी बनेगा ये आपका एंगल, मतलब यहाँ से अभी 45 डिग्री काउंट होगा, ये वाला बेस लाइन अभी होगा। तो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट एंगल, मतलब हर एक एंगल के बाद और एक एंगल ऐड होगा। तो जैसे 45 डिग्री अगर इंक्रीमेंट एंगल है तो एक 45 डिग्री के बाद और एक 45 डिग्री में स्नैप होगा, ट्रैकिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए पोलर ट्रैकिंग में आप इंक्रीमेंट एंगल दे के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके 45 डिग्री, 30 डिग्री टू 22.5 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको कुछ और टाइप का एंगल्स चाहिए जो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड नहीं है, तो आप यहाँ से एडिशनल एंगल्स बोल के यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर न्यू दे के, सपोज़ मैं यहाँ पर 75 डिग्री मांग चाहता हूँ, तो यहाँ पर 75 एंड ओके, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं और एक लाइन ले लेता हूँ, अभी ये जाके पूरा 75 डिग्री में स्नैप हो गया। देखिए आपका जो एंगल है वो है 75, और ये जो ट्रैकिंग दिख रहा है आपका ग्रीन लाइन का, ये है आपका पोलर ट्रैकिंग। तो ये कहाँ पर जाके स्नैप हुआ, एग्जैक्ट 75 डिग्री पे। अभी आपका जो लाइन का लेंथ है वो आप सिर्फ डाल दीजिए, बस आपका जो लाइन है वो एक एंगल पर बन गया। तो ऐसे करके हम लोग जो पोलर ट्रैकिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो है, अभी यहाँ से मैं एडिशनल एंगल को हटा देता हूँ, ओके। तो एडिशनल एंगल मतलब अगर 90 के साथ अगर कोई एंगल और चाहिए तो आप उसको भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, या फिर और कोई एंगल भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे 45 और 90 दोनों चाहिए, तो 90 के साथ मैं एडिशनल एंगल में 45 डिग्री लिख दिया, तो 90 भी लेगा और 45 डिग्री भी लेगा, ऑलराइट। तो ऐसे करके हम लोग जो इंक्रीमेंट एंगल है उसको यूज़ कर सकते हैं और पोलर ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप किस काम के लिए यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए। ज़्यादातर व्यूज़ जब हम लोग बनाते हैं, ऑर्थोगोनल व्यूज़, तो उसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्नैप आखिर है क्या, तो पहले आपको ये याद रखना होगा कि इसका टॉगल की है F3, ओके। और ऑब्जेक्ट स्नैप का जो ट्रैकिंग है उसका टॉगलिंग की है F11। तो ऑब्जेक्ट स्नैप जो है ये कैसा काम करता है, सपोज़ ये एक लाइन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ऑब्जेक्ट का एक मिड पॉइंट रहता है और दो एंड पॉइंट रहता है, बस उसका ही जो स्नैपिंग पॉइंट है उसको ही कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप। ये देखिए, ये वाला पॉइंट को स्नैप किया,
इस पॉइंट को स्नैप किया, इस पॉइंट को स्नैप किया, यही है आपका ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में बहुत तरीके का मोड्स आता है आपका, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, ओके, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टैंजेंट, नियरेस्ट, पैरेलल, ठीक है। इतने सारे आपका ऑब्जेक्ट स्नैप है। तो अगर जो आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग चाहिए वो आप चेक करके रख सकते हैं, और जो आपको चाहिए नहीं वो आप अनचेक करके रख सकते हैं। ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है वो भी देख लेते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ अभी आपको ये वाला लाइन आपने ड्रॉ किया है, ठीक उसी तरह एकदम सेम लेंथ का लाइन पैरेलल रखना चाहिए और सेम पॉइंट में ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंट में अगर इसका ऐसा होगा तो या इस पॉइंट पे एकदम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रहेगा, बट ऐसे तो आप बिना कोई मेजरमेंट लिए ऐसे तो बिठा नहीं सकते ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट स्नैप को लेना पड़ेगा। पहले जो आपका पॉइंट है उसको पहले स्नैप कीजिए, सिंपली ड्रैग डाउन योर माउस and then you can see some green dotted line. That green dotted line is called the object snap tracking. पोलर ट्रैकिंग में हम लोग देखे थे कि जब कोई एंगल स्नैप कर रहा था तो वहाँ पर भी एक ऐसा ग्रीन डॉटेड लाइन आया था। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ट्रैकिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रीन डॉटेड लाइन दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम लोग ये जो लाइन है, लाइन का जो पॉइंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन पे रहता है तो ऐसे करके ले सकते हैं हम लोग। ओके, और सेम लेंथ, मतलब अभी इस लेंथ का भी कोई वैल्यू हमको पता नहीं है, बट ऐसे ही लेंथ हमको चाहिए। तो फॉर दिस केस वी हैव टू अगेन स्नैप इट, ये ऐसे करके ऐसे। ऑलराइट, तो लाइक दिस वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप हम लोग 3D जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे आइसोमेट्रिक, तब जाके हम लोग ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल जो 2D बेसिक्स में हम लोग है अभी वही देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है डायनामिक इनपुट्स। तो डायनामिक इनपुट्स क्या क्या है आपका, एक है पॉइंटर इनपुट, एक है डायनामिक प्रॉम्प्ट्स और एक है डायमेंशन इनपुट। तो पहला जो है आपका पॉइंटर इनपुट मतलब आपका जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है आपका, इसका जो इनपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिखा है आपको, ये जो डायनामिक इनपुट है आपका, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 22 ऐसा लिखा है ना, यहीं पर वही चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वही आपका है पॉइंटर इनपुट। जिस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आप पॉइंटर को रखेंगे वही आपका वहाँ पर इनपुट दिखाएगा, और जिस जगह पे आप पॉइंट या फिर कोई बेस पॉइंट को रखना चाहते हैं तो आप वहाँ उस जो इनपुट का जो बॉक्स है उसमें आपका कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं। ऑलराइट, तो सपोज़ मैं यहाँ पर 20 ओके कॉमा 30 कर देता हूँ। तो देखिए ये सिंपली उस पॉइंट को ले लिया। ऑलराइट, तो ये है डायनामिक इनपुट का पॉइंटर इनपुट। ओके, तो यहाँ पर अगर एनेबल पॉइंटर इनपुट करेंगे तो इसका जो पॉइंटर इनपुट है ये एनेबल रहेगा, और अगर इसको डिसेबल कर दिए तो आप ये देख नहीं पाएंगे। ऑलराइट, और डायनामिक प्रॉम्प्ट मतलब आपका जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका पहला पॉइंट क्या चाहिए, मतलब जैसे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए तो सेंटर पॉइंट के लिए आपको बोल रहा है वहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो वो जो प्रॉम्प्टिंग हो रहा है आपका वो उसे कहते हैं डायनामिक प्रॉम्प्ट। ओके, जैसे मैं सर्कल लेता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो इसे कहते हैं आपका डायनामिक प्रॉम्प्ट। ऑलराइट, और एक लास्ट जो है आपका वो है डायमेंशन इनपुट। डायमेंशन इनपुट मतलब आप जो यहाँ पर, जैसे मैं पहले आपको दिखा था कि लाइन ऐसे लिया, तो अभी देखिए यहाँ पर एक डायमेंशन का बॉक्स आया है। ओके, तो इसे कहते हैं डायमेंशन इनपुट। यहाँ पर आप डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ये चाहिए नहीं तो इसको आप हाइड कर सकते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर डायमेंशन को डाल सकते हैं इसको हाइड करके भी।
ओके, तो मेरा सजेशन है कि आप ये कोई कुछ भी हाइड मत कीजिए, क्योंकि कभी कभार आपको देखना पड़ता है कि कौन सा यूनिट आप डाल रहे हैं या फिर कौन सा मेजरमेंट आप दे रहे हैं, तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं क्विक सिलेक्शन में, क्विक प्रॉपर्टीज़ में, सॉरी। तो क्विक प्रॉपर्टीज़ में है क्या, अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं तो सोचिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया एक बार, ये सिलेक्ट हुआ बस। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका जो प्रॉपर्टी बॉक्स है वो पॉपअप हो आएगा। ओके, इसका जो प्रॉपर्टी बॉक्स है वो पॉपअप हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर DS पे जाके, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स पे जाके, यहाँ पर जो डिस्प्ले द क्विक प्रॉपर्टी पैलेट है उसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो क्या होगा, मैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा उसके साथ साथ ही ये प्रॉपर्टी बॉक्स भी पॉपअप हो जाएगा। ओके, तो इसी सेटिंग से आप ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को आपका जो क्विक सिलेक्शन क्विक प्रॉपर्टी बॉक्स है उसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका सिलेक्शन साइक्लिंग। सिलेक्शन साइक्लिंग का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है सिर्फ, अभी मैं यहाँ पर पॉलीलाइन दे रहा हूँ, सेम इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है अभी। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अभी सपोज इसको मैं डीएक्टिवेट करके रखता हूँ साइक्लिंग को, तो मुझे पॉलीलाइन रखना है और इसका नीचे जो लाइन था उसको मुझे डिलीट करना है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द पॉलीलाइन इज ओवरलेइंग ऑन टॉप ऑफ द लाइन। That means if you have to select it, then you have to first select the polyline, drag it anywhere and then select the line to delete it. तो इसको करने में बहुत ऐसे प्रोसेस यूज़ हो जाएंगे, तो ऐसा करके कोई टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, सिंपली ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके सिलेक्शन साइकिल के ऑप्शन में ये जो अलाउ सिलेक्शन साइक्लिंग है इसको एनेबल कर देना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसमें जब भी क्लिक करेंगे किसी भी ओवरलेइंग ऑब्जेक्ट पे, तब आपका जो जो ऑब्जेक्ट ओवरले हो रहा है वो आपका सिलेक्शन बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर दो लाइन था, एक था नॉर्मल लाइन और एक था पॉली लाइन, तो पॉली लाइन में और लाइन पे सिलेक्शन बॉक्स अपीयर हो गया। तो अभी मैं इजीली यहाँ से लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और देन डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पॉलीलाइन जो है, ये देखिए पॉलीलाइन यहाँ पर रह गया और जो मुझे लाइन डिलीट करना था वो मैं डिलीट कर पाया हूँ। तो ऐसे करके हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को सेट करके हम अपना जो ड्राफ्टिंग है या फिर कोई सभी ड्राइंग है उसको ईजीली कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट कैसे सेट करते हैं, इसका पर्पस क्या है, हम लोग सीख गए, और ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को कैसे यूज़ करें वो भी सीख गए। अभी चलते हैं हम लोग ड्राइंग टूल्स में और एक एक को इन डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग टूल्स क्या क्या है, उसको कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है लाइन, उसके बाद आता है पॉलीलाइन। दोनों ही लाइन है बट अलग अलग नाम से है। तो लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो लाइन को यूज़ करने के लिए या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लाइन कमांड के यूज़ कर सकते हैं। लाइन कमांड जो है इसका शॉर्टकट की है L and then press enter. Your line command has been activated. Then you can use it by putting the first coordinate point, that means the first base point and the second end point. Alright, तो ऐसे करके आप लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और एक जो है पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन को भी सेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका शॉर्टकट की जो है पॉलीलाइन का वो है PL and then press enter. तो पॉलीलाइन आपका हो चुका है एक्टिवेट एंड नाउ यू कैन पुट इट राइट ओवर देयर। तो यहाँ पर मेरे पास दो लाइन और पॉलीलाइन है, तो मैं
इस लाइन से एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लोज्ड फिगर। ओके, और मैं पॉलीलाइन से एक क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, सेम टू सेम। ओके, तो यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइन है इसका, लाइन जो है ये देखिए प्रॉपर्टी में लाइन है इसका, ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी में पॉलीलाइन है। ओके, तो जब भी आप इस टाइप के ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करना चाहेंगे, तब आपको हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन जाके आपका जो फिगर है वो होली सिलेक्टेड होगा। ओके, नहीं तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, आपका पूरा जो फिगर है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे करके आप पूरा ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाएंगे या फिर कॉपी नहीं कर पाएंगे। ओके, बट इन द केस ऑफ पॉलीगन, इफ यू वांट टू सिलेक्ट एनी वन ऑब्जेक्ट, then your whole figure will be selected. ओके, तो यही है लाइन और पॉलीलाइन के बीच में अंतर। पॉलीलाइन इज अ होल वन सिंगल एंटिटी। ओके, बट एक लाइन में अगर आप कोई क्लोज्ड फिगर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट नहीं बोलेंगे, न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स है टू which is connected to each other to form a closed figure. ओके, तो इसीलिए इसको लाइन से आपको अगर पूरा जो फिगर है सिलेक्ट करना है तो आपको इंडिविजुअली हर एक को सिलेक्ट करना है ऐसे करके, नहीं तो आप सिलेक्शन बॉक्स से भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सिलेक्शन बॉक्स में पिछले वीडियो में दिखाए थे कि ये जो ग्रीन ब्लू बॉक्स है, ये अगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा लेयर लेके रखेगा, और मतलब जो ऑब्जेक्ट इस ब्लू बॉक्स के अंदर होगा वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शियली इसके अंदर है और पार्शियली इसके बाहर है तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ द ग्रीन बॉक्स, ग्रीन सिलेक्शन बॉक्स, उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक पार्ट पूरा उसके अंदर है तो वो तो सिलेक्ट होगा ही। अगर कोई पार्ट पार्शियली उसके अंदर है और पार्शियली कुछ पार्ट उसका बाहर है, तब भी वो पार्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। ऑलराइट, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक है लासो सिलेक्शन, मतलब आप लेफ़्ट क्लिक को दबा के ऐसे अपने तरफ से अपने हिसाब से एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप एक लासो क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप उतना ही सिलेक्शन के लिए दे सकते हैं जितना आपको चाहिए। सपोज़ मान के चलिए कि आपको ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है बट आपका ये ऐसा आ रहा है, तो तब जाके आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया था, ओके, नहीं लिया, तो ऐसे करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लासो सिलेक्शन। ब्लू में भी ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो पॉलीलाइन है, यहाँ पर ऐसे करके कर सकते, नहीं तो ऐसे करके भी कर सकते, ठीक है। तो ये है लाइन और पॉलीलाइन के बीच में डिफरेंस। बट लाइन को हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक कमांड है जो कि हम बाद में सीखेंगे, जब हम लोग मॉडिफाइंग टूल को इन डेप्थ में सीखेंगे तब। तो अभी के लिए जो लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस है वो जान लेते हैं। तो लाइन और पॉलीलाइन हो चुका है ख़त्म, अभी नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सर्कल कैसे बना सकते हैं और क्या क्या मेथड्स है सर्कल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 6 टाइप का मेथड्स है सर्कल को बनाने के लिए। एक है सेंटर रेडियस, एक है सेंटर डायमीटर,
एक है 2 पॉइंट, देन 3 पॉइंट, देन 10-10 रेडियस और एक 10-10-10। तो ये जो 6 मेथड है ये तीनों सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका रेडियस डायमीटर में सेंटर से, एक सेगमेंट में है पॉइंट से आप बना सकते हैं, ये एक है 2 और 3 पॉइंट से, और एक है आप टेंजेंट पॉइंट को लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले सेगमेंट पे चलते हैं और देखते हैं कि सेंटर रेडियस कैसे बनता है। पहले आप यहाँ से जो सेंटर रेडियस है आप उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके सर्कल बना सकते हैं। ऐसे बस रेडियस को पुट कीजिए, मैं यहाँ पर 10 दे रहा हूँ। ओके, तो ऐसे करके आप सर्कल बना सकते हैं। और एक है आपका डायमीटर, तो डायमीटर के लिए भी ऐसे सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके डायमीटर 10 × 2 दैट मीन्स 20। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर सर्कल को अगर आप कमांड से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो शॉर्टकट की है सर्कल का वो है C, देन C एंड प्रेस एंटर। ओके, आफ्टर दैट specify the center point and so always remember that when you are going to make the circle the radius input is always be in by default। ओके, तो जब भी आप कोई इनपुट देने जाओगे तो आपका जो डायमेंशन होगा सर्कल का वो पहले से ही रेडियस में रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपका रेडियस में डायमेंशन है तो आप रेडियस में दीजिए, ये अन्यथा आप डायमीटर पे दे सकते हैं। तो अगर रेडियस पे है तो रेडियस पे दीजिए, या फिर डायमीटर पे है तो आप सिंपली डी दबाइए और प्रेस एंटर। तो आपका जो सर्कल का डायमेंशन है वो डायमीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप डायमीटर सेट कीजिए और आपका सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये 2 मेथड हो गया है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट मैं यहाँ पर पहले पॉइंट्स बना देता हूँ, हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर 3 पॉइंट मैं बनाया हूँ। अभी एक पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को आप 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, इस पॉइंट को भी 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी 2 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये होता है। मैं यहाँ से भी डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और 2 पॉइंट ऐसे बना सकता हूँ, या फिर मैं सर्कल कमांड देके यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, यहाँ पर 3p है, 2p है एंड 10-10 रेडियस है। तो मुझे 2p चाहिए, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2p लिख के एंटर प्रेस कीजिए। आपका जो 2 पॉइंट का मेथड है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर आप यहाँ से इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे करके आप सर्कल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2p या फिर 2 पॉइंट मेथड। और एक जो मेथड है 3 पॉइंट या फिर 3p, यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप C प्रेस एंटर, देन 3p प्रेस एंटर। आप कहीं से भी ले सकते हैं पॉइंट, क्योंकि ये सर्कल है इसीलिए वो ऐसा ही बनेगा। आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसे करके हम 3 पॉइंट से भी सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि 10-10 रेडियस क्या है और 10-10-10 क्या है। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अभी फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर है 10-10 रेडियस। तो 10-10 रेडियस क्या है, यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। सो द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल विल बी ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट होगा जिस ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो वाला जो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट होगा वो वहाँ पर बन जाएगा। सेकंड टेंजेंट पॉइंट को भी आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, एंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको रेडियस देना है। सपोज़ मैं यहाँ पर 7.5 का रेडियस दे रहा हूँ और
यहाँ पर मेरा सर्कल बन गया। ऑलराइट, ये आप यहाँ से भी बना सकते हैं कमांड प्रेस करके, TTR एंटर। ओके, और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे रेडियस इसका 7.5 एंटर। ओके, अच्छा आखिरी जो है यहाँ पर कमांड से आप 10 10 10 को यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका 10 10 10 है, मतलब यहाँ पर सिर्फ लास्ट में आपको रेडियस नहीं देना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर आपको बस टेंजेंट पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपका ये सर्कल भी बन जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो अभी हम लोग देख लिए कि सर्कल को किस किस मेथड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सिनेरियो पे आपको कौन सा मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि हर जगह पे आप हर तरीके का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। हर एक सिनेरियो के लिए अलग अलग टाइप का मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको वो देखना है कि किसको कहाँ पे अप्लाई करें। ओके, तो सर्कल भी हो चुका है कंप्लीट। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका आर्क। तो आर्क में भी ऐसे बहुत टाइप का मेथड्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स टू क्रिएट एन आर्क। सो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, तो पहला जो है आपका 3 पॉइंट, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड। तो इसको बस 3 आप पॉइंट दीजिए, कहाँ कहाँ आपको पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक है स्टार्ट पॉइंट, एक होगा आपका क्वाड्रेंट पॉइंट, और एक होगा आपका एंड पॉइंट। तो यही आपका 3 पॉइंट आर्क, और कुछ नहीं। अगर आपके पास पॉइंट रहेगा तो आप पॉइंट भी उस पॉइंट पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 3 पॉइंट इज़ वेरी इजी टू मेक एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट। द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं ये एक सेगमेंट पे था, ये दूसरा सेगमेंट पे है, ये तीनों मेथड, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट और पांचवा सेगमेंट में कंटिन्यू है। कंटिन्यू मैं बाद में बोल रहा हूँ क्या है। तो पहले आप ये तीनों सेगमेंट का जो मेथड्स है वो आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर पहला मेथड है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड मतलब आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आर्क का सेंटर पॉइंट रहेगा और एक एंड पॉइंट देना पड़ेगा जितना तक वो आर्क ख़त्म हो जाएगा। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट पॉइंट को दे सकते हैं और सेंटर पॉइंट को दे सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपको एंड पॉइंट देना पड़ेगा। आप ऐसे करके ऊपर की तरफ जा नहीं सकते, आपको ये पूरा एक जो आर्क है वो कंप्लीट आर्क में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ से आपको सिर्फ लेना पड़ेगा। अगर ये आप ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं देन सिंपली press and hold the control key and just move the cursor upwards so that the direction of the arc would change, and then press to the point where you want to stop. तो आपका जो आर्क है वो ऐसे क्रिएट हो सकता है। और अगर आपको ऐसा ही आर्क इस साइड पे चाहिए तब आपको सेंटर पॉइंट के राइट साइड में आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, मतलब इस तरफ देने के बाद इसका सेंटर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, और फिर ऐसे करके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नहीं तो प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की एंड स्विच द डायरेक्शन ऑफ द आर्क ऑपोजिट। ओके, ऐसे करके आप आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट सेंटर एंगल। इसमें एंड की जगह आपको बस एंगल डिटरमाइन करना पड़ेगा। कैसे करें हम लोग, तो पहले इसको ले लेते हैं। अभी देखिए मैं स्टार्ट दे दिया हूँ, यहाँ पर सेंटर भी दे दिया हूँ। ओके, बस अभी आपको एंगल देना है। ठीक है, तो एंगल इसमें कैसे दे, पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आ रहा है इसका। तो मैं पेंट पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर ऐसा एक आर्क को बनाना है, तो यहाँ पर आपका
ऐसा एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी और एक लाइन को मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे करके इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। देयर इट इज। तो जो आपका एंगल ले रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस होगा या फिर जो बेस लाइन है वहाँ से आपका एंगल ले रहा है, ठीक है। तो आपका जितना तक एंगल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये सपोज थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू सपोज 45 डिग्री, सॉरी बहुत गंदा राइटिंग है यहाँ पर, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो आपका एंगल है, सपोज मैं 45 डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहाँ पर इसका एंगल 45 डिग्री होगा, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर भी आपका सॉरी एडजेसेंट एंगल जो है तो वो भी आपका 45 डिग्री में आएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आर्क क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये आर्क, यहाँ पर जो स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, और इसका जो एंड पॉइंट है ये डिटरमाइन हो रहा है आपका एंगल के साथ, ओके। तो यहाँ पर जो आप एंगल देने जाएंगे वही एंगल आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी सिंपली यहाँ पर ऐसे स्टार्ट पॉइंट फिर सेंटर पॉइंट, अभी यहाँ पर सपोज मैं 45 डिग्री अगर देता हूँ तो ये 45 डिग्री एंगल पे ही ये लिया है, देखिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसा इसका अगर लाइन होगा बेस लाइन, तो यहाँ पर भी ऐसा इसका ये जो एंगल यहाँ पर है आपका, ठीक है, यही एंगल आपका 45 डिग्री आएगा, ऑलराइट। तो ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट पॉइंट को जिस तरफ आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आर्क क्रिएट होगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो जाता है कि आप स्टार्ट पॉइंट को किस तरफ रखते हैं सेंटर पॉइंट से, ओके। तो अभी नेक्स्ट जो है इसका वो देख लेते हैं, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो अभी एंगल की जगह आपको लेंथ देना पड़ेगा। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, फिर से इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट पर। तो सपोज यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। अगर इसको मुझे कट करना है तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कॉर्ड लाइन का लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड लाइन है, ये क्या कर रहा है, इस सर्कल को कट कर रहा है। यहाँ से जो ये कट कर रहा है ना, एक आर्क क्रिएट कर रहा है, यही आर्क है वो आर्क जो लेंथ से बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट होगा इसका, सपोज यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसका रेडियस, तो क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपका स्टार्ट पॉइंट, एक आपका सेंटर पॉइंट, और एक है आपका लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ से, अच्छा यहाँ पर जो है ये वाला लाइन यहाँ पर नहीं होगा, इट्स माय मिस्टेक टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज अ स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पर नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा अंडू करता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं लाइन को लिया सेंटर पे और इस तरफ, तो सेंटर से अप टू सर्कमफरेंस तक का इसका तो रेडियस ही होगा, ठीक है। और यहाँ से कितना लेंथ तक जाएगा वही लेंथ डिटरमाइन करेगा कि आर्क कितना तक बनेगा, उसका कर्वेचर कैसा आएगा। आर्क का जो कर्वेचर है वो डिटरमाइंड होगा आपका लेंथ से। तो ये लेंथ ही है आपका कॉर्ड लाइन
ये है आपका सेंटर पॉइंट, ये है आपका स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट, सेंटर, लेंथ और ये है आपका आर्क। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? तो ऐसे करके यहाँ पर जो स्टार्ट, सेंटर, लेंथ है ये ऐसे ही बनता है। यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर सेंटर, फिर देखिए आपका लेंथ आ रहा है यहाँ पर। तो आप लेंथ अगर सपोज मान के चलिए 20 दे रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो आपका 20 आएगा। देखिए एकदम 20 दिखा रहा है। आपका जो डायमेंशन इनपुट बॉक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि उसका लेंथ 20 दिखा रहा है। ओके, तो ऐसे करके हम इस आर्क को भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको अगर ऐसे 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 दे तो ऐसे, नहीं तो अगर इस तरफ स्टार्ट पॉइंट और इस तरफ सेंटर पॉइंट को रखें तो इस तरफ आपका आर्क बनेगा। यहाँ पर भी 20 करके आप आर्क बना सकते हैं। तो ये इस वाले सेगमेंट का हर एक मेथड पे कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पर फर्स्ट जो मेथड है उसमें स्टार्ट एंड एंगल है। तो आपको पहले एक स्टार्ट देना पड़ेगा, फिर एक एंड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंगल देना पड़ेगा। तो स्टार्ट और एंड तो आपके पास है, बट कितना कर्वेचर वो लेगा वो डिटरमाइन करेगा आपका एंगल। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट एंड एंगल लेता हूँ। स्टार्ट दे दिया, एंड दे दिया। अभी यहाँ पर जैसे मेरा एंगल कितना होगा, सपोज 135 एंगल है तो ऐसे होगा। क्योंकि मैं पहला सेंटर यहाँ एंड स्टार्ट पॉइंट यहाँ दिया हूँ और एंड पॉइंट यहाँ दिया हूँ, इसलिए मेरा कर्वेचर ऐसा आया है। अगर मैं मेरा कर्वेचर के लिए स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर देता और एंड पॉइंट इस तरफ देता तो तब जाके ये अलग से बनता है ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये अगर 45 डिग्री में रहेगा, ये 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री में आएगा नहीं। तो सपोज मैं 90 डिग्री में रखता हूँ, तो ऐसे करके मेरा जो कर्वेचर है वो एंगल से डिटरमाइंड हो गया। मतलब ये अगर आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और इसका एंगल ये होगा। ओके, ऐसे करके आपका जो आर्क है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी चलते हैं सेकंड पे, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। यहाँ पर बस आपको डायरेक्शन देना है कि कहाँ पर आपका कितना तक कर्वेचर आपको चाहिए। ठीक है, वो देख लेते हैं। स्टार्ट, फिर एंड और डायरेक्शन। ठीक है, सोचिए इस डायरेक्शन पे जाएगा या फिर इस डायरेक्शन पे जाएगा, वो आपको देना है। अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे, अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे, ऐसे चाहिए तो ऐसे, या फिर ऐसे चाहिए तो ऐसे। तो आपके हिसाब से किस डायरेक्शन पे देना है और कैसा कर्वेचर आना है वो आपके डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका स्टार्ट एंड रेडियस। ये सबसे इजी आर्क है। ठीक है, मतलब आपको बस स्टार्ट देना है, एक एंड देना है और बस आपको रेडियस देना है कि कितना चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 25 रेडियस का आर्क, तो यहाँ पर 25 रेडियस का आर्क दे दिया। और इसको अगर उल्टा करने जाऊँ तो ऊपर पे स्टार्ट, नीचे एंड, और यहाँ पर मैं 25 रेडियस का दे दिया। तो ये 25 रेडियस से 25 डिग्री का एक आर्क बना दिया। ऑलराइट, अच्छा अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल और सेंटर स्टार्ट लेंथ ये सेम ही है। ऐसे यहाँ पर स्टार्ट पहले था, यहाँ पर सेंटर पहले है, तो आप सेंटर पहले दीजिए, फिर स्टार्ट दीजिए, उसके बाद जो है आपका एंड, एंगल, लेंथ। ठीक है, वैसे करके आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो है कंटिन्यू के लिए मैं पहले एक ऐसे नॉर्मल बना देता हूँ आर्क। ठीक है, उसके बाद आप अगर यहाँ पर कंटिन्यू करने जाएंगे तो देख सकते हैं आपका जो आर्क है वो उसी पॉइंट के बाद आपका कंटिन्यू हो रहा है ऐसे। ठीक है, अगर फिर से कंटिन्यू करेंगे ऐसे करके तो ये फिर से कंटिन्यू होगा।
ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल को कैसे बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको कमांड दे सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट की है REC रेक्टेंगल, एंड प्रेस एंटर। देन इसके बाद आप स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रेक्टेंगल आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट करके बना पाएंगे। तो इसको बनाने के अगर आप फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिए, इसके बाद आप एरिया देके भी रेक्टेंगल को बना सकते हैं। अगर आपके पास एरिया है रेक्टेंगल का तो आप एरिया भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 50 एरिया का दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो लेंथ या फिर विड्थ आपको देना पड़ेगा कोई भी एक। तो मैं सपोज़ यहाँ पर लेंथ दे रहा हूँ, जो कि इसका लेंथ होगा 25, ओके। तो ऐसे करके मेरा जो रेक्टेंगल है वो मैं बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरिया मेथड। और आपके पास अगर डायमेंशन रहेगा तो आप डायमेंशन के साथ भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको D सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रेस एंटर। तो उसका लेंथ पहले आपको सेट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 25। फिर इसका जो विड्थ है उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं सपोज 20, ओके। तो ऐसे करके हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं। प्रेस एंटर, सॉरी D, ओके। और नेक्स्ट जो है आपका रोटेशन, वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अभी हमको R दे के रोटेशन इसका देना है। तो इसका जो रोटेटिंग एंगल है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, ठीक है। तो पीक पॉइंट मतलब आपका अगर कोई पीक पॉइंट रहेगा तो उसमें आप पॉइंट को पिक कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये ऐसा इसका हो गया है, ऑलराइट। तो इसका जो एंगल है वो डिटरमाइंड हो गया है, स्पेसिफाइड हो गया है। अभी आपको फिर से वही डायमेंशन या फिर एरिया से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक मेथड है रेक्टेंगल को बनाने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस है इसको बनाने में। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका वो है आपका रेक्टेंगल में शैम्फरिंग करना होता है, मतलब कॉर्नर जो है रेक्टेंगल का उसमें वो शैम्फर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका शैम्फर है, यहाँ पर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर C दबा के एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको स्पेसिफाई फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो आपका जो डिस्टेंस होगा, फर्स्ट डिस्टेंस शैम्फर का, वो आपको देना होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 2.5, ठीक है। और सेकेंड शैम्फर का डिस्टेंस भी आपको मांग रहा है। अगर आपको सेम डिस्टेंस में चाहिए तो सेम दे सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हो गया। अभी आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपको फर्स्ट कॉर्नर को देना होगा, तब जाके आपका जो लेंथ है, सॉरी रेक्टेंगल है, वो शैम्फर रेक्टेंगल बना देगा, ओके। और जो है आपका नेक्स्ट है एलिवेशन आप 3D में यूज़ कर सकते हैं। ये 2D में नहीं यूज़ होता, ये ज़्यादातर 3D में यूज़ होता है। और थिकनेस और विड्थ भी आपका 3D में यूज़ होता है। तो जो 2D में यूज़ करते हैं हम लोग, वो सिर्फ शैम्फर और फिलेट और नॉर्मल रेक्टेंगल ही यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अभी फिलेट को देखने के लिए आप यहाँ पर फिलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर आप F प्रेस करके एंटर, फिर आपका जो फिलेट रेडियस है उसको आप दे सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करके यहाँ पर आप फिलेटेड रेक्टेंगल क्रिएट कर पाएंगे। इसका जो कॉर्नर है वो राउंड शेप में आ जाएगा, उसका कर्वेचर आ जाएगा उसमें, राउंडनेस। तो ये है आपका फिलेटेड रेक्टेंगल। तो ऐसे करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऑलराइट। तो रेक्टेंगल भी हो चुका है ख़त्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, ओके। तो नेक्स्ट टूल है आपका पॉलीगन, जो कि आप रेक्टेंगल के जो ड्रॉप डाउन है उसमें आपको मिल जाएगा, ये पॉलीगन,
ठीक है। तो पॉलीगन बनाने के लिए आपके पास दो मेथड रहेगा। वो दो मेथड क्या है अभी दिखाए गए आपको। तो पहले आपको देना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ साइड्स आपको चाहिए। तो जैसे मैं पेंटागन बनाऊंगा तो पेंटागन का 5 साइड्स होता है, तो 5 एंड एंटर। अभी ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, तो मैं सेंटर को स्पेसिफाई कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है इंस्क्राइब इन सर्कल और एक है सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। ठीक है, तो ये इंस्क्राइब क्या है और सर्कमस्क्राइब क्या है इसको डिटेल में जानते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग पेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक मेरा सर्कल है जिसमें हम लोग अभी स्क्राइबिंग करेंगे। ठीक है, तो पेंटागन बनाने के लिए इसका जो इंटीरियर एंगल है वो है आपका 360। तो अगर इसको मैं 5 सेगमेंट में डिवाइड करूं तो हर एक सेगमेंट का इंटीरियर एंगल होगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, तो सपोज़ मान के चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्राइबिंग कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर एक स्क्राइबिंग कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसे स्क्राइबिंग कर रहा हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो ये मैं स्क्राइबिंग कर लिया हूँ। अभी अगर आपको बोल रहा है कि इंस्क्राइब इन सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर आपका पॉलीगन क्रिएट होगा। ठीक है, और अंदर क्रिएट होगा मतलब पॉलीगन का जो वर्टिसेस है या फिर कॉर्नर है वो उस स्क्राइब्ड पॉइंट पे प्लेस होगा। मतलब ऐसे करके आपका पॉलीगन्स बनाएंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और इसमें और एक इसमें। तो यहाँ पर पॉलीगन बन चुका है, पेंटागन जो है इसमें बन गया है। ठीक है, तो ये है आपका इंस्क्राइब इन सर्कल। ठीक है, ये है इंस्क्राइब इन सर्कल। और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल मतलब सर्कमफरेंस के ऊपर आपका पॉलीगन क्रिएट होगा। ये जो सर्कल है इसका सर्कमफरेंस के ऊपर आपका पॉलीगन क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि पॉलीगन का जो साइड है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है वो टेंजेंशियली उस स्क्राइब्ड पॉइंट से पास होगा। मतलब अगर यहाँ पर ऐसे लाइन को मैं खींचूँ, ठीक है, इस लाइन से ऐसे करके मैं खींचूँ तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहा है ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट होगा ऐसे करके। अगर एक लाइन खींचूँ इसके ऊपर टेंजेंशियली पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर भी सेम। यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम। तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इस पार्ट पे, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, उसको थोड़ा साइज में बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पेंटागन बन गया है। बस इसका जो साइड है, ठीक है, इसका जो साइड है वो टेंजेंशियली उस स्क्राइब पॉइंट से पास हो रहा है और इसका जो सर्कल है वो पॉलीगन के अंदर होगा, मतलब पॉलीगन सेंटर के बाहर आएगा। ऑलराइट, तो अभी इसको देखते हैं वर्क स्पेस में कैसा दिखता है। तो पॉलीगन को सिलेक्ट कर लिए, नंबर ऑफ साइड्स भी दे दिए। अभी सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं इंस्क्राइब इन सर्कल। तो इंस्क्राइब इन सर्कल मतलब अभी क्या करेंगे, देखिए आपका जो रेडियस है
आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो रेडियस आपका क्या आ रहा है, सेंटर पॉइंट से वो जो आपका पॉइंट है पॉलीगन का जो कॉर्नर है उतना तक ही आपका रेडियस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जहाँ पर वो सर्कल ख़त्म हो रहा है उसका जो सर्कमफरेंस में स्क्राइबिंग हो रहा है वही आपका स्क्राइब पॉइंट है और उसी पॉइंट में पॉलीगन का कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पर 15 रेडियस का एक सर्कल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पेंटागन अभी क्रिएट हुआ है उसका सर्कल रेडियस है 15। तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यही है और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर ऐसे करके नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको 15 रेडियस दे के ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका जो सर्कल का स्क्राइब्ड पार्ट है यहाँ पर आके वो जॉइन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और एक पेंटागन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट भी दे दिया मैं। अभी सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, रेडियस सेम ही रहेगा। अभी आप देखिए कि आपका जो पेंटागन है वो सर्कल के बाहर हो चुका है और इसका जो स्क्राइब्ड पार्ट है। ठीक है, अभी इसमें मैं यहाँ पर स्क्राइब पार्ट दिखाया था आपको जल्दी समझाने के लिए। बट अगर ये जो पॉलीगन है ये ऊपर से रहेगा तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंशियल हो रहा है उसी पॉइंट पे आपका स्क्राइबिंग पार्ट है। मतलब यहाँ पर कितना स्क्राइबिंग पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 5 साइड्स है, मतलब 5 पॉइंट्स ऑफ स्क्राइब्ड। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पॉलीगन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 2 मेथड्स विच इज inscribe in circle and another one is circumscribe in about circle. ओके, तो पेंटागन भी पॉलीगन भी कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीख लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इलिप्स कैसे बना सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आपका जो इलिप्स है यहाँ से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, पॉलीगन का जो शॉर्टकट की है वो है POL। ठीक है, पॉलीगन POL है आपका पॉलीगन का शॉर्टकट, वो मैं बताना भूल गया था। तो इलिप्स का भी जो शॉर्टकट की है वो है EL। ठीक है, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपको आर्क चाहिए तो A दबाइए या फिर आपको सेंटर से करना है तो सेंटर दबाइए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो मैं एंड पॉइंट भी दे देता हूँ इसका 25 डायमेंशन लेके। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका मेजर आपको एक्सिस और एक एक्सिस देना है। अभी वो मेजर एक्सिस होगा या फिर माइनर एक्सिस होगा वो डिपेंड करता है कि जो पिछले एक्सिस से अगर बड़ा होगा ये वाला एक्सिस तो ये मेजर एक्सिस होगा, अगर पिछले वाले एक्सिस से छोटा होता है तो ये माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, तो मैं इसे छोटा ही रखता हूँ अभी 15। तो ऐसे करके भी आप इलिप्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इलिप्टिकल आर्क जो है यहाँ से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप है, एक सेंटर है और एक है एक्सिस एंड। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बस एक एक्सिस देना है, यहाँ पर अदर साइड का एंड पॉइंट दे दिए। अभी नॉर्मली फिर से वही आपको करना है। एक मेजर एक्सिस तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर वो माइनर एक्सिस भी होगा। अगर सेकंड एक्सिस जो है वो फर्स्ट वाले एक्सिस से बड़ा हो तो वो वाला मेजर एक्सिस हो जाएगा, या फिर अगर छोटा होगा तो माइनर एक्सिस। ऐसे करके ये भी इलिप्स बना सकते हैं। और अगर आपको आर्क चाहिए तो उसके लिए आप EL दबा सकते हैं। EL दबाने के बाद आप आर्क पे जाइए बाय प्रेसिंग A एंड प्रेस एंटर। फिर आपको देना है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स आर्क। ठीक है, तो आपको एक्सिस का एक एंड पॉइंट देना है और एक एक्सिस का एंड पॉइंट देना है। फिर आपको यहाँ पर जो आर्क है उसका मेजर या फिर माइनर एक्सिस डिटरमाइन करके आपको बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको मांग रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। ठीक है, तो अगर आपका एंगल सपोज ऐसे 0 डिग्री पर रहता है एक, ठीक है, और दूसरा एंगल सपोज मैं
45 डिग्री दे देता हूँ। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है, मैं 45 डिग्री में बना रहा हूँ। ठीक है, ये 45 डिग्री में ये जो इसका इलिप्टिकल आर्क है वो बन चुका है। ऐसे करके हम जो इलिप्स का आर्क है, इलिप्टिकल आर्क, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी और एक टूल बचा हुआ है जो कि है हैचिंग टूल। उसको कैसे यूज़ करते हैं आइए चलिए देखते हैं। ओके, तो हैच करने के लिए हैच ड्राइंग टूल यूज़ करने के लिए पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ऐसे इसी पॉइंट से बना लेते हैं। ठीक है, तो सोचिए ये एक फ्रेम है और इसमें मटेरियल है। हैचिंग देते हैं क्योंकि सोचिए आपके पास एक कोई सा भी कटआउट सेक्शन है, ठीक है, और उस कटआउट सेक्शन में कुछ जगह मटेरियल है और कुछ जगह मटेरियल नहीं है। तो जिस जगह मटेरियल है, हैचिंग उसको रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर वो मटेरियल है। अभी मटेरियल के अकॉर्डिंगली हैचिंग का जो स्टाइल है वो चेंज होता है, तो वो स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो वहाँ पर। तो हैच यहाँ पर सोचिए एक फ्रेम है, तो इसमें मैं एक हैच देना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर आप शॉर्टकट की से भी हैच दे सकते हैं। आप सिंपली एच टाइप कीजिए, उसमें हैच आ जाएगा, फिर प्रेस एंटर एंड पिक द इंटरनल पॉइंट। तो अगर आपका इंटरनल पॉइंट ऐसा, मतलब कर्सर को आप इंटरनली यहाँ पर लेके गए जहाँ पर आपको चाहिए, तो उतना तक ही आपका ये ले लेगा। ठीक है, जैसे ये इंटरनल पॉइंट पे ये ले लिया। अभी यहाँ पर जो इसका पैटर्न के बीच में जो गैप है, स्पेसिंग है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, प्रेस एंटर। तो हर एक लाइन के बीच में 5 का गैप है। ऑलराइट, और इसका एंगल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे। इसका ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, देन और यहाँ पर आपका जो अकॉर्डिंग टू मटेरियल आपका जो हैचिंग चेंज होगा, आप यहाँ से हैच चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा किस मटेरियल पे कौन सा हैच सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको हैच यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हैच स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाइए, आपका जो हैचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हैच के बाद आता है आपका ग्रेडियंट। ठीक है, यही ड्रॉप डाउन में आपका ग्रेडियंट भी है। तो ग्रेडियंट क्या है, कलर फिल देने के लिए। ठीक है, 2 टाइप का कलर रहता है और उसमें कलर एक फिल देने के लिए ग्रेडियंट फिल आ जाता है। जैसे सपोज मैं ये जो लीनियर है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इंटरनली एक स्पेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑरेंज किया, यहाँ पर मैं रेड किया। ठीक है, ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रांसपेरेंसी भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। तो ग्रेडियंट भी आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो चुका है ड्राइंग टूल ख़त्म। हम लोग जो ड्राइंग टूल थे उसको हम लोग इन डिटेल में जान लिए। थैंक यू guys for watching this video. If you find this video very much helpful to you, then please like this video and share this to everyone. And if you have any type of queries or question, then ask me in the comment section down below. And if you are new to this channel, then press the subscribe button and click on the notification bell so you all never miss any update. So see you all in my next video. Till then, take care. Love you all. Jai Hind. Vande Mataram.